A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject economics. Dear students, in the previous lecture of economics, we have completed our chapter number 3 of IED, and the chapter was agriculture, industry and trade till 1950 to 1990. Now, dear students, today we are going to start our next, that is the fourth chapter of IED, and the name of the chapter is Economic Reforms since 1991, that is also known as New Economic Policies. So, dear student, let's get started about the concept of the chapter. The very first topic that we are going to discuss is the meaning of economic reforms, that means new economic policy. Whether it is stated new economic reforms or it is stated as the economic reforms or the new economic policy, concepts will be the same. So, dear students, as we all have discussed earlier also, after independence, the policy that have been adopted by the government were the policies of controlling and regulating the economy, and as a result of that the process growth started hampered. जो process था हमारा growth का वो क्या होने लग गया, hamper होना start हो गया. And as a result the inefficient management of the economy take place, और जो economy का management हुआ उसकी working भी वो कैसी हो गई, inefficient हो गई, sorry. And ultimately till 1990 में ये एक जो इनएफिशिएंसी थी इट कन्वर्टेड इनटू द इकोनॉमिक क्राइसिस. किस में कन्वर्ट हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस में कन्वर्ट हो गई. नाउ देन व्हाट हैपन, देन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यूज्ड टू टेक प्लेस. नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? Economic reforms refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. उन डिफरेंट पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन के सेट को हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा, जिनका मेन मोटिव या फिर जिनकी डायरेक्शन क्या थी, टू एसिलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी. Now see further, it was in the year of 1991 that the government of India launched the new economic policy. 1990 तक हम लोगों ने बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस किया. 1991 में गवर्नमेंट ने एज अ सोल्यूशन क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया, अनफोल्डिंग अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू पुट द इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ 1990, ताकि क्या कर सकें, 1990 की जो क्राइसिस थी उससे इकोनॉमी को विड्रॉ कर सकें, उससे प्रोटेक्ट कर सकें. इसलिए 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया. नाउ सी द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़. जो थ्री बेसिक कंपोनेंट्स रहे गवर्नमेंट के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, वो कौन कौन से थे? लिबरलाइजेशन, एंड इनिशियली इट वाज लाइसेंसिंग in the place of licensing. Initially it was licensing को remove करके liberalization किया. The next element, that is privatization in the place of quotas. पहले quotas थे, quotas को हटा के जो गवर्नमेंट फील्ड के लिए quotas decided थे उनको हटा के privatization किया. And globalization in the place of permits. पहले क्या करना पड़ता था, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए you have to take the permits or the permissions, उसको हटा के ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया. तो न्यू कॉन्सेप्ट आपका LPG का हो गया, L लिबरलाइजेशन, P प्राइवेटाइजेशन एंड G ग्लोबलाइजेशन. तो ओल्ड कॉन्सेप्ट आपका किसका रहा बेटा? LQP का, licensing, quotas and permits. Now the elements of new economic policy. There are three elements: liberalization, privatization and globalization. Initially we are going to take the liberalization. Then dear students, what is the meaning of liberalization? So liberalization of the economy means freedom of producing units from the direct or physical controls of the government. क्या करना? लिबरलाइज करना, ईजी करना. क्या करना? जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस थे, जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस थे, कंट्रोल्स थे, उनसे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को लिबरलाइज कर देना, फ्री करना, दैट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन. Now don't get misconcepted that liberalization means that there will be no control of government. Liberalization means removing of the unnecessary regulations, unnecessary control by the government. जितने भी गवर्नमेंट के unnecessary और wasteful regulations थे, बस उनको रिमूव करना ही क्या है, हमारा liberalization का कॉन्सेप्ट है. Now what were the need for the liberalization? So see here, prior to 1991, government has imposed the several types of controls on the private enterprises in the domestic economy. 1991 से पहले अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए थे प्राइवेट एंटरप्राइज पे.
Now see the second point, it was experienced that by government that several shortcomings had emerged in the economy on account of these controls. और इन controls का result क्या हुआ, बहुत से shortcomings economy में क्या होने लगे, emerge होने लगे, birth करने लगे. Third point, these controls had given rise to corruption. अब इन controls का result क्या हुआ, corruption, undue delays and efficiency. क्या हो गया, करप्शन आ गया, जो वर्क था वो लेट होने लग गया, और जो एफिशिएंसी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इनएफिशिएंसी में कन्वर्ट हो गई. एंड द लास्ट पॉइंट, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड फॉलन शार्पली एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम केम इनटू बीइंग. क्या हुआ, जो अभी तक हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही थी अब उस जीडीपी ने डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया, और जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या बन गई, हाई इकोनॉमिक कॉस्ट. दैट मीन्स कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था और उसका बेनिफिट कम था. ये सारे नीड्स थी लिबरलाइजेशन की. नाउ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन. अब लिबरलाइजेशन में भी डिफरेंट एलिमेंट्स में कैसे कैसे लिबरलाइजेशन आया, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. द वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में एक सेट ऑफ स्टेप्स को इनिशिएट किया. कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको देखते हैं. द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज द एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. एबोलिशन का मतलब होता है बेटा रिमूव करना. जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी जो गवर्नमेंट ने पहले इंप्लीमेंट कर रखी थी, गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. देखिए, इन जुलाई 1991 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड. एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एंड इट एबॉलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग. अब जितनी भी लाइसेंसिंग थी उसे क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, बट एक्सेप्ट दीज 5 सेक्टर्स. और ये 5 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स. इन 5 के अलावा आपको किसी में लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इफ़ यू आर एंटरिंग इन दीज 5 फील्ड्स देन डेफिनेटली यू आर नीडेड विद द गवर्नमेंटल लाइसेंसिंग. सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पहले पब्लिक सेक्टर को जो रोल मिला था दैट वाज अ लीडिंग रोल. नाउ द अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जो ये रोल था गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर का, उसे क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया, रिड्यूस कर दिया. देखिए क्या बताया, इसमें जो पहले सेक्टर्स रिजर्व थे इंडस्ट्रीज़ के लिए, पब्लिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनको 17 से सबसे पहले 8 करा. ठीक है, एंड इन 2010 एंड 11 इन इस 8 को और रिड्यूस करके सिर्फ कितना कर दिया, 3 इंडस्ट्रीज. नाउ ओनली देर आर 3 इंडस्ट्रीज दैट आर केप्ट फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड रेस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज आर फॉर द प्राइवेट सेक्टर. अब ये 3 इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं, एटॉमिक एनर्जी इज़ फॉर पब्लिक सेक्टर, रेलवेज इज़ फॉर पब्लिक सेक्टर एंड द डिफेंस इक्विपमेंट इज़ फॉर द पब्लिक सेक्टर. नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट इज द de-reservation of production areas. What is the de-reservation of the production areas? डी-रिजर्वेशन, रिजर्वेशन किसी को कंफर्म करना, और डी-रिजर्वेशन का मतलब क्या हो गया, वो जो कंफर्मेशन था उसको रिमूव करना. देखिए, मैनी प्रोडक्शन एरियाज विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. पहले कुछ सर्टेन एरियाज थे, कुछ सर्टेन फील्ड्स थे जिनको कि रिजर्व कर दिया था, किसके नेम पे, इन द नेम ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब उनको भी क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया. दैट मीन्स देयर विल बी नो कोटा, स्पेसिफिक कोटा फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल. नाउ द मार्केट फोर्सेज वर लेफ्ट in the market to allocate the resources. Fourth point देखिए, that is the expansion of production capacity. If we talk about the licensing, that not only for opening of the new industries but even for the expansion of the production capacity there was requirement of licensing and permit. और गवर्नमेंट ने क्या किया, अंडर द लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट इस एक्सपेंशन प्रोडक्शन कैपेसिटी के जो परमिशंस थी, जो लाइसेंसिंग थे, उन्हें क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया. नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द economic reforms under the industrial sector, that is the freedom to import capital goods. What was the situation earlier beta? Earlier the policy of protection and the import substitution was implemented, and as a result it was very difficult to import goods or the capital goods from the rest of the world. इन सब चीज़ों को import करना बहुत क्या होता, डिफ़िकल्ट था. बट नाउ अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक फ्रीडम प्रोवाइड करी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैपिटल गुड्स को ईजिली इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं. नाउ नो लॉन्गर परमिशन इज नीडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. ठीक है, सो ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द इंडस्ट्रियल सेक्टर. नाउ
द नेक्स्ट वन दैट इज द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. नाउ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को समझने से पहले हम लोग समझते हैं व्हाट आर द हेड्स दैट यूज टू कम अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर. बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं बेटा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी आता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ये तीन एलिमेंट मिलके आपके फाइनेंशियल सेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. So see further, in India, the financial sector is regulated and controlled by the Reserve Bank of India. We know that कि हमारी कंट्री में मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कौन है? RBI, that is Reserve Bank of India. नाउ लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ? देयर वर टू ड्रास्टिक चेंजेस. द वेरी फर्स्ट, देयर वॉज अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई. आरबीआई का जो रोल था ना, जिसका टाइटल था, वो चेंज कर दिया. इनिशियली इट वॉज हैविंग द टाइटल ऑफ अ रेगुलेटर, नाउ इट इज़ अ फैसिलिटेटर, जो कि सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, हेल्प करेगा और डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा, मतलब कि डोमिनेट नहीं करेगा. सेकेंड पॉइंट, नाउ मार्केट फोर्सेस डिसाइड द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर. अब इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या होगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? इसके बाद से मार्केट कंडीशंस पे इसको लेफ्ट आउट कर दिया गया. एंड ऑल द इंटरेस्ट रेट, वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेज ओनली. सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. अंडर दिस कॉन्सेप्ट another point is there, that is the demonetization, and the demonetization is the concept that we have discussed earlier as well. So this is all about today's lecture. God bless you all. Lots of love.